almost 30 years down the line now. As I look back my journey, so I think from general orthopedics, I went into subspecialty of arthroscopy and sports injuries. That was again something new which I started in North India way back in year 2000 after I left Government Medical College Chandigarh. Then in 2002 when I was very much convinced that the operations which we were doing was spine conventional open procedures, उसकी जो suffering है जो morbidity जो बहुत ज़्यादा है, तो it stimulated me and I went on to learn spine endoscopy in France in year 2002, and those techniques, whatever I learned there, I came back and I started those techniques in India. In fact, we were first two doctors, one from Maharashtra and one from Punjab, that's me. We started these techniques, and today my journey of spine endoscopy is almost, you can say, about 20 years plus. And I think patients have accepted those techniques. थोड़ा देर का रहता था, उसका चलना फिरना भी बड़ा slow होता था. But with new techniques coming in, technology ने वो भी change कर दिया. So arthroscopy, sports injuries, then we added spine endoscopy, and now of late, since when I was in army, I think we had a spine cord injury center, 10-bedded in command hospital, Chatti Mandir. So that was the time when I started applying to these patients. When they fall from a tree or in a road traffic accident, they break their spine. जब उनकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है और साथ में उनका पैर नीचे गिरता है कि लातें भी रह जाती हैं. So that is a very grim situation for a patient, family के लिए भी और society के लिए at large. And it was always in my mind that we should have a spine rehab unit. अगर हम पंजाब की बात करें या इस साइड की बात करें तो डेडिकेटेड स्पाइनोलॉजी सेंटर एक ही है जो मोहाली में है, जो डॉक्टर साहब चला रहे हैं, डॉक्टर राज, दैट इज बाय गवर्नमेंट एडेड, बट दैट इज आल्सो क्रेविंग फॉर द फंड्स. दैट इज आई थिंक सम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्सेज गिविंग द फंड्स टू दैट, and we don't have any other dedicated spine rehab. He is brought to our emergency. He is evaluated by our emergency team, and that decision is taken by a specialist team that whether his operation is to be done or he will be doing well without operation. And immediately fixation is done, and then the rehab process starts. Rehab का मतलब ये हैगा कि अगर बंदे की लत्ता काम नहीं करते, that doesn't mean जो नकारा हो गया और वो सोसाइटी तो बाहर हो गया. होता क्या है कि उस बंदे को दोबारा सोसाइटी में लाने के लिए और उसको दोबारा यूजफुल बनाने के लिए सेट रिहैब. उस रिहैब के दौरान पेशेंट को ये रियलाइज कराया जाता है कि आपकी वैल्यू बहुत है सोसाइटी में, नंबर 1, और उसके फैमिली मेंबर्स को भी सेंसिटाइज किया जाता है. तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं तो 3, 4, 5 महीने देखते हैं, फिर उसको अकेला छोड़ देते हैं बेड पे पड़ा. और ये पेशेंट्स का क्या होता है, फिर उनका प्रेशर शो हो जाते हैं, उनके पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाती है और वो जहर फिर जब खून में चला जाता है तो पेशेंट 6 और 8 महीने से ज़्यादा नहीं सर्वाइव करते. तो जो स्पाइन रिहैब की हमारी जो हमने कंसेप्ट लाइन है, which was very much in my mind being from arm forces background, so this is first of its kind. Operations तो पीजे में भी हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी रीढ़ की हड्डी टूटी है, उन्होंने नट बोल्ट लगा दिया और घर भेज दिया पेशेंट. दैट इज नॉट अ रिहैब. ये जो मैं ऑपरेशन करता हूँ नट बोल्ट लगाने का स्पाइन में, वो 20 या 30% कहानी है. एक्चुअल जो केयर है वो उसके बाद शुरू होगी. तो स्पाइन रिहैब इज 70%. माय जॉब एज अ सर्जन इज जस्ट 20 to 30%. So this is the thing which we have taken initiative now, and this is the first time we in private sector we have a dedicated spine injury rehab unit where comprehensive care is provided to the patient. बंदा गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, सर्जन ने उसकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबल कर दिया और अगले दिन उसकी रिहैब शुरू होगी. बंदा बेड से बाहर निकला, व्हील चेयर पे आया, आस्ते आस्ते जैसे उसकी लातों में ताकत आने लगी, जान आने लगी, और he is back to work. आजा अगर बेची I have played my innings in orthopedic therapy, that because I am now 60 years plus, and if I look back, मैंने सोसाइटी को दिया गया है orthopedic surgery, so I feel satisfied कि I introduced arthroscopy 20 years back, then I started spine endoscopy which is accepted now. मैंने काफी डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया spine endoscopy में. So we were informal chatting was on. So Amit, tell me when we want to go officially. I am Dr. Mohinder Kaushal.
I am chairman and medical director. In fact, I have Dr. Mukul Koshal is on my right side. He is also a senior consultant orthopedics. He is also fellowship trained in arthroscopy, sports injury, spine endoscopy, and joint resurfacing. So आजकल ना जोड़ों को बचाना भी साड़ा फैशन हैगा. And Miss Amrita Ghosh, she is a spine head physio. She has worked in Spinal Cord Injury Center, New Delhi. Then she was in Army, ECHS clinic, and now she is part of this team, and she is in charge of spine rehab. She is a musculoskeletal physiotherapist, but her main area of expertise is this rehabilitating spine injury patients. So I think now we can have a interactive session also. सर जुवेनाइल केसेस के लिए रिहैब सेंटर आपका काम करता है या सिर्फ इंजरी केसेस? जुवेनाइल केसेस का मतलब है जो बचपन से स्पाइन रिलेटेड. दिस इज अ स्पाइन इंजरी एंड न्यूरो रिहैब, राइट? तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बंदे को, उसको भी रिहैब यहाँ मिलेगा. स्पाइन इंजरी इज अ वन एस्पेक्ट वेयर वी आर वर्किंग मोर. सर 100% सक्सेस रेशियो है इसकी, रिकवर हो जाता है बंदा जैसे आप कह रहे हो ना डेथ? 100% सक्सेस रेशियो का मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी नसें ठीक हैं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी को हम स्टेबलाइज कर देंगे तो दोबारा वो 3 पे लेवल दौड़ लेगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर रीढ़ की हड्डी भी टूटी है, उसकी नसें में पार्शियल डैमेज है और 3 से 6 महीने में अगर वो रिकवर कर जाती है तो बंदा फिर गेन कर सकता है. यू रिमेंबर दैट फिगर सी दैट पिक्चर वाज मेड, who was formerly recently a minister in Haryana government. That guy was paralyzed when accidentally he got put in the Shatabdi. He came back. He played Olympics, I think, and he is a living example. So every case to case we evaluate, we decide. We know if this patient will be able to, how much he will be able to recover. सर आपका खर्चा कितना होता है महीने का रखने का पेशेंट को? Spine injury is a costly ballgame, but there are provisions available. There is a private patient on one side, there are government patients, so we have schemes for everyone. We have Ayushman in our hospital, so this is all. Otherwise, a private patient who is a rich guy, it may cost, the first initial surgery will cost around close to 3 lakh rupees, and then subsequent rehab also about 2 to 3 lakhs rupees, 5 to 6 lakhs. सर कुछ बच्चे पंजों के बाहर चलते हैं, वो एक डिफॉर्मिटी है एक्चुअली, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसे रिकेट्स कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, आई एम नॉट श्योर. रिकेट्स तो आई थिंक सो कर्वेचर होता है, लेकिन तो ये उस केसेस में आपके पास आ सकते हैं क्योंकि ऑर्थो के आप स्पेशल आ सकते हैं. वो केसेस के बारे में थोड़ा डिटेल बता दो सर, कि कुछ बच्चे देखे हमने. एड़ी के बल चलते हैं ना, इसकी अलग अलग कारण होते हैं, बीमारियां हैं, देयर आर अबाउट 50 बीमारियां हैं. तो वो तो मैं नहीं गिनाऊंगा. आपने सवाल किया मेरे से कि उसका इलाज है. यस, इलाज है. एक होता है सेरेब्रल पैल्सी. सेरेब्रल पैल्सी तब होती है बच्चे को जब बच्चा माँ के पेट में पैदा होने के टाइम ना वो डिले हो जाती है, डिलीवरी या सिजेरियन लेट हो गया तो दिमाग को खून नहीं मिला, तो दिमाग का कुछ हिस्सा वो गड़बड़ा जाता है, तो उससे बच्चे की स्पास्टिसिटी हो जाती है और डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती है. तो इसका भी इलाज है. नंबर 1. नंबर 2 इज कई बार कोई दिमागी बीमारी हो जिससे बच्चा पैदा हुआ हो, तब वो नुक्स है तो उसको भी हम ऑर्थोपेडिक सर्जन रेक्टिफाई कर देते हैं भाई प्रोसीजर. उसके लिए क्या सर्जरी है उसके लिए, और टेन्योर क्या है उसका रेक्टिफिकेशन का? हाँ, उसके लिए कितना टाइम लगता है रेक्टिफिकेशन के लिए? और उसके लिए डिफरेंट. ओके, हड्डी को काट के ठीक करना है तो लंबा टाइम लगेगा. सॉफ्ट टिश्यू की रस्सी काटी, उसको एडजस्ट किया तो 6 हफ्ते में रस्सी जुड़ जाती है. हड्डी को काटा, पेच फूट डाले तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है. तो एवरीथिंग इज पेशेंट बेस्ड. तो हेड इंजरी का तो केस आपके पास नहीं आता होगा? हेड इंजरी एंड स्पाइन रिहैब, लेट्स नॉट मिक्स एप्पल एंड ऑरेंजेस. लेट्स टॉक अबाउट स्पाइन इंजरी एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स. ये है उसमें मैं रिहैब इतना सारा इसको ये करना है आपका रिहैब. देन शी टेक्स ओवर, शी टॉक्स टू मी, डिस्कसेस, एंड दिस इज हाउ वी कैरी फॉरवर्ड. ये सर आपका है कहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर? जो सेक्टर 20 वाला है, ट्रिनिटी हॉस्पिटल, ट्रिनिटी जीरकपुर में, जो स्वास्थ्य विभाग के. या बट वी हैव ए ओपीडी इन सेक्टर 20 आल्सो, इज आउटरीच ओपीडी. तो पेशेंट वहाँ दिखाते हैं हमें, देन वी काउंसिल देम, एक्सप्लेन देम. हमें फैमिली मेंबर्स को साथ में बिठाना पड़ता है बिकॉज उनको बेचारों को कुछ नहीं पता. वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम पुराने अस्पताल में गए, उन्होंने नाटकोट डाल दिया और तीसरे दिन हमें घर भेज दिया और मेरा ये बच्चा जो है 15 साल का है, बाइक एक्सीडेंट में इसकी औलादें काम नहीं करती तो ये घर में पड़ा हुआ है, पीछे जख्म हो गए होंगे उसके. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन स्पाइन. वो लीजन्स हो जाते हैं, जो लीजन्स हो जाते हैं ना, वो पीछे बैड सोर्स कहते हैं, वो तो बहुत वो क्यूरेबल. दिस इज द एरिया व्हिच इज नॉट थॉट ऑफ, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टेकन इनिशिएटिव that we start this
expertise also, and spine we have unit. And this is Sir- how we are here to share with you this new information and facility in. आप टेस्ट कौन कौन से करवाते हो? फिर टेस्ट करवाते हो कोई या फिर कहाँ करवाते हो आप? टेस्ट एक्सरे होते हैं इसका MRI होता है, इसका CT स्कैन होता है, फिर लैब टेस्ट होते हैं। उसके बाद सारा फिर उस हिसाब से डिसीजन होता है, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी पर टूटती है उसका ओवरऑल इलाज करना पड़ता है। अगर टाइमली आप पहले तो सबसे पहले होता है कि रेसिसिटेट करना, उसको बचाना है। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट बड़ा ज़्यादा सीरियस है, ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो, पेशेंट मर जाता है 24-48 घंटे में, अगर उसको रिससिटेट नहीं करेंगे। So there is a 24/7 हेल्पलाइन सर्विस। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो सर कहीं बड़े हॉस्पिटल में थे पहले और वहाँ से आए हों आपके पास? और डेफिनेशन ऑफ ए बड़ा हॉस्पिटल है, मैं क्या समझा रहा जैसे पीजीआई का, मैं पीजीआई में भी वही इलाज करता था, यहाँ पे वही इलाज करता हूँ। नहीं सर, मैं वो आपको एज ए एक्सपर्ट, आप स्पेशलिस्ट हैं सर, आप मेरे पास एक्सपर्ट आते हैं, ओपिनियन के लिए। मैं ये कह रहा हूँ। 10 डॉक्टरों के देखे हुए हैं, मेरे पास ओपिनियन के लिए आते हैं पीजीआई से, और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ओपिनियन के लिए आते हैं। मेरे पेशेंट वहाँ भी जाते होंगे जरूर ओपिनियन के लिए। तो पेशेंट घूमता है बेचारा, जो एक जगह ठीक नहीं होता वो हर जगह घूमता है।